Hello students, how are you? I hope you are all well. Welcome to Tour Academy. Today's topic is transportation, that is from life processes, and we are going to explain the topic from this transportation, that is structure of human heart, because in human being the transportation take place through pumping function of blood and heart. So transportation is from life processes and structure of human heart I am going to explain today, and in my next video I am going to explain about the functioning of heart, and we have different types of blood circulation taking place in this heart. So let's start today's topic, structure of human heart. तो I will explain the structure. Already मैंने ये draw करके रखा है diagram just to save the time. तो इसमें before starting the actual structure of human heart, I will give you a brief idea about the heart कि हमारा heart, human heart is made up of 4 chambers, और वो 4 chambers से human heart की efficiency increase होती है. Efficiency मतलब this 4 chambered heart supplies enough amount of sufficient amount of oxygen और oxygenated blood. तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब एक एक सेल में ज़्यादा करता है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उससे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. सो इट 4 चैम्बर्ड हार्ट, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड completely, clearly and completely. It separates the oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated blood, as you know, it is pure blood. It has a high percentage of oxygen gas in it, and deoxygenated blood is impure blood. Commonly it is also known as impure blood, and impure blood, deoxygenated blood has a high percentage of carbon dioxide in it. तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन काफ़ी चाहिए होती है हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, फंक्शनिंग के लिए. इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन्स में कितने जो फंक्शन होते हैं, वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ वाई वी नीड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. तो ये आपका ह्यूमन हार्ट स्पेशल इसका ये स्ट्रक्चर है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है. हमसे कुछ लोअर एनिमल्स हैं लाइक एम्फीबियंस हैं, पाइसेस हैं, फिश है, उनमें 3 चैम्बर्ड एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि दे नीड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. So let's start now this structure of human heart. तो टोटल जो हमारा ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्स में है. ये है, जब भी आप ऐसे खड़े होते हो तो ये वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको राइट पार्ट, राइट साइड कहते हैं हार्ट की, एंड द लेफ्ट जो आपका हैंड है उस साइड जो पार्ट होता है हार्ट का, दैट इज नोन एज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. सो पूरा हार्ट हमारा वो है, ये राइट साइड है हार्ट की, right side, and this is the left side of the heart. ठीक है. तो ये जितने भी इस साइड पोर्शन, इस साइड जितने भी पार्ट्स हैं आपके हार्ट के वो राइट हैंड साइड पे हैं, ये सारे पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, राइट. तो हमने 2 में पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब आ जाता है कि द होल हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है हमारे पूरे हार्ट पे. ये है हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग. इट कवर्स द होल हार्ट, ये पूरे हार्ट को कोट करती है, कवर करती है पूरे हार्ट को लाइक दिस. एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम, दिस इज a membrane, pericardium इसका नाम है, and pericardium, cardium word is related with heart. What is the function of this part? It protects the heart from any mechanical shock. कोई भी अगर आपको जर्क लगता है, कोई झटका लगता है, any mechanical shock से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. This is known as pericardium. और उसके बाद there is another layer, ये एक और लेयर है, and this is another layer. ये और पेरिकार्डियम और ये जो दूसरी लेयर है, it is made up of, it is very thick, ये काफी thick होती है, because as we know our heart is a very delicate structure. It should be well protected
any mechanical shock. So this layer, ये जो आपको मैंने बताई है, ये very thick layer है ये. This is known as myocardium. This is known as myocardium. It is made up of muscles. ये muscles की बनी हुई होती है. That is why it is known as myocardium. Cardium, again, word is related with heart. So these are the two layers. Outer one is pericardium, very thin, but the inner one is very thick. It is made up of muscles and it also protects the heart from any mechanical shock. So these are the two layers. उसके बाद आ जाता है इसमें कुछ valve भी होते हैं. Valve is a structure which controls the direction of blood. ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, रिवर्स नहीं होने देता उसको. सो ब्लड के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हार्ट के अंदर 4 वॉल्व हैं. V1, V2, V1, V2, V3 and V4. V1, V2, V3 and V4. These are the 4 valves. V1 valve is present at the beginning of the ऑट्रियम. ये हमारा ऑट्रियम है, मैं आपको बताती हूँ. इसके बिगिनिंग पे एक वॉल्व है. इसकी शेप है सेमी-ल्यूनर. सेमी-ल्यूनर, सेमी-ल्यूनर का मतलब ल्यूनर वर्ड इज रिलेटेड विद मून. हाफ मून शेप के ये होते हैं, जैसे आधा चांद होता है वैसे शेप के होते हैं. दैट इज वाई इसका शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम है सेमी-ल्यूनर वॉल्व. एंड बिकॉज शेप है इसकी सेमी-ल्यूनर, लेकिन इसका एक्चुअल में जो टेक्निकल नेम है दैट इज बाइक्यूस्पिड वॉल्व. बाइक्यूस्पिड वॉल्व. दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ऑट्रियम में ये बिगिनिंग में होता है. ऑन द अदर हैंड वी हैव V2 वॉल्व. ये आपका V2 वॉल्व है यहाँ पे. दिस इज द V2 वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज ऑल्सो सेमी ल्यूनर. ये भी आपका सेमी ल्यूनर है शेप में एंड इट इज नोन एज ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व. ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व इसको बोलते हैं. राइट. सो दीज आर द 2 वॉल्व्स हो गए आपके. एंड वी हैव V3 एंड V4. और भी 2 वॉल्व हैं इसमें. और V3 वॉल्व आपका होता है हेयर, जहां से आपका एओर्टा, दैट इज द बिगेस्ट आर्टरी, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ. एक ओवरऑल में इसका डिस्क्रिप्शन भी अभी आपको दूंगी. तो V3 जो वॉल्व है, दिस इज नोन एज एओर्टिक वॉल्व. ठीक है. एओर्टिक वॉल्व इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एओर्टा. That is the biggest artery which supplies the blood, oxygenated blood, to the whole body. Aortic valve V3. This is here it is present. There is another V4. यहाँ पे ये होता है at the beginning of the pulmonary artery. तो यहाँ पर ये होता है pulmonary artery में. This is pulmonary artery, इसीलिए इस valve को कहते हैं pulmonary valve. क्या बोलते हैं इसे? pulmonary valve. So this is pulmonary valve. This is aortic valve क्योंकि it is present at the beginning of the यहाँ पे beginning of the aorta, and pulmonary valve is present at the beginning of the pulmonary artery. Right? So these are the 4 valves present in it. Now कहाँ से ब्लड एंटर करता है और कहाँ से ब्लड बाहर goes outside of the heart. तो उसके लिए we have some veins and we have some arteries. कुछ वेन्स हैं जो हार्ट में एंटर करती हैं. आपको मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि जितना भी आपके ब्लड वेसल्स हैं, they are divided into 3 categories: veins, arteries and capillaries. Veins normally they carry impure blood, that is deoxygenated blood. I am using this word normally
और जनरली वर्ड यूज कर रही हूँ वेन्स के लिए बिकॉज वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस. ऑन द अदर हैंड जो आपकी आर्टरीज होती हैं नॉर्मली दे कैरी प्योर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नॉर्मली वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी वी हैव वन एक्सेप्शनल केस कि वो आर्टरी होते हुए भी इट कैरीज इम्प्योर ब्लड. वेन्स नॉर्मली इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, पूरे बॉडी में से ब्लड हार्ट में लेके आती है. नॉर्मली वर्ड इसलिए मैं ले रही हूँ बिकॉज वेन्स में भी वी हैव सम एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ऐसा है तो वो हम कहते तो उसको वेन है बट इट कैरीज प्योर ब्लड. सो ये आपकी पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी एओर्टिक वॉल्व है. तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी वेन्स एंड कौन कौन सी आर्टरीज इसमें से निकलती हैं और आती हैं. सो सबसे पहले है राइट ऑट्रियम. दिस इज द राइट ऑट्रियम. हमारा आपको मैंने शुरू में बताया था कि होल हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स. ये जो लोअर चैम्बर है दिस इज नोन एज वेंट्रिकल. क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है इसलिए हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल. वी हैव this is right ventricle because it is present at the right hand side of the heart. R for right ventricle. Lower part of the heart is divided into 2 parts, left ventricle, right ventricle. Upper part again divided into 2 parts. ये वाला पार्ट जो इसका लेफ्ट हैंड साइड पे है इट इज नोन एज L atrium. L atrium means लेफ्ट atrium. और जो राइट हैंड साइड पे है दिस पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज एट द राइट हैंड साइड इज नोन एज राइट ऑट्रियम. राइट ऑट्रियम. राइट. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द हार्ट. 4 चैम्बर हार्ट के हो गए. राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ कम टू द पॉइंट कि इसमें कौन कौन सी आर्टरीज इसमें बाहर निकलती है प्योर ब्लड लेके और कौन कौन सी वेन्स इसमें एंटर करती है. अभी आपको मैं बता रही थी कि वेन्स नॉर्मली दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है वो मैं अभी बताती हूँ आपको. और नॉर्मली जो आपकी आर्टरीज हैं दे कैरी प्योर ब्लड. उसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि इम्प्योर ब्लड भी कैरी करती है. नंबर 2 और एक वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेन्स का कि दे ऑलवेज एंटर इनटू हार्ट. वो हार्ट के अंदर एंटर करती हैं, पूरे बॉडी से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है एंड दे एंटर इनटू हार्ट. वो एक और निशानी है वेन्स की. एंड आर्टरीज की एक और फीचर है कि दे गो आउट ऑफ द हार्ट, दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से वो दूर जाती हैं. सो दोज आर आर्टरीज. तो यहाँ पे अब आ जाइए कि कौन कौन सी वेन्स इसमें एंटर करती हैं और कौन कौन सी आर्टरीज बाहर निकलती हैं. तो वेन्स में सबसे पहले आ जाती है दिस वेन. दीज आर द 2 वेन्स. इन वेन्स को दोनों को ही कहते हैं वीना कैवा. वीना कैवा वेन से बना है. एंड दिस वेन, ये वाली जो आपकी वेन है दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज वीना कैवा. वीना कैवा. अब vena cava which brings the deoxygenated blood from the upper part of the body, brain से या upper part of the body से जो impure यानी कि deoxygenated blood right hand side से enter करती है उसको superior vena cava बोलते हैं. And number 2 the vena cava which brings the deoxygenated blood from the lower side of the body. लोअर साइड में आपके लिम्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाते हैं, आर्म्स आ जाती हैं, लोअर साइड एब्डोमेन आ जाता है. सो लोअर पार्ट से लोअर साइड से जो ब्लड वेन्स इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके एंटर करती हैं उसको भी वीना कैवा कहते हैं. लेकिन क्योंकि वो लोअर साइड से आती है दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंफीरियर. इंफीरियर मतलब नीचे से, बॉडी से ऊपर से जो आती है वो सुपीरियर, नीचे से जो आती है वो इंफीरियर वीना कैवा. सो दीज आर द 2 वेन्स. दे एंटर इनटू ऑट्रियम. राइट ऑट्रियम में इम्प्योर ब्लड लेके आती है. सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा
ये एक है सुपीरियर वीना केवा और ये है इंफीरियर वीना केवा। पूरे बॉडी से, अपर बॉडी, लोअर बॉडी से दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट हैंड साइड से ये हमारे राइट ऑट्रियम में एंटर करती है। तो हमारा राइट ऑट्रियम में वही ब्लड फिर नीचे आ जाता है वेंट्रिकल में। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो हमारा हार्ट है दैट कैरीज impure blood, that is deoxygenated blood, right? On the other hand, now come to this side. यहाँ पे देखो आपके कुछ आर्टरीज मैंने बताई थी, they go out of the heart. जो हार्ट से बाहर निकलती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये आर्टरीज हैं, they are going away from the heart. Another artery which is also going away from the heart, but the difference is कि ये दोनों arteries हैं, ये right atrium से कहाँ जा रही हैं? हमारे lungs में जा रही हैं। Deoxygenated blood को लेके ये lungs में जा रही हैं और lungs में blood will get purified, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वहीं छोड़ देगा एंड बदले में ऑक्सीजन ले लेगा। तो वही ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है। ये नहीं है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं। जब उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाती है वी स्टार्ट कॉलिंग इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है देन वी विल स्टार्ट कॉलिंग इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आर्टरी यहाँ से निकल रही है, अब है तो ये आर्टरी बट इट इज कैरिंग impure blood, deoxygenated blood। क्यों आर्टरीज को कहते हैं? क्योंकि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। आपको मैंने अभी बताया कि दोज ब्लड वेसल्स विच गो अवे फ्रॉम द हार्ट और नॉर्मली वो प्योर ब्लड लेके जाती है, तो उनको हम आर्टरीज कहते हैं। सो ये है तो आर्टरीज बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। दे आर आर्टरीज बट दे आर कैरिंग इम्प्योर ब्लड। राइट हैंड साइड से ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है और कहाँ जा रही है? ये राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। ये जाएगी राइट लंग्स में, ये जाएगी लेफ्ट लंग में। सो दे आर गोइंग टू लंग्स, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। अब लंग्स में जा रही है तो वो क्या लेके जाएंगी? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। वहां पे उनकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी एंड द सेम ब्लड विल एब्सॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स। एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा और वही ब्लड हमारा प्यूरिफाइड हो जाएगा। इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दीज आर द टू आर्टरीज। दे आर नोन एज आर्टरीज बट दे कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ये लंग्स में जा रही है तो इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज। एक जा रही है लेफ्ट लंग में और ब्रांचेस हो गई इसकी, दूसरा ब्रांच जा रही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट लंग में। सो दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। दे आर नोन एज आर्टरीज बट दे कैरी impure blood. Number 2, आपके पास on the other hand side we have two veins entry. इनको बोलते हैं pulmonary veins। ठीक है, ये क्या है? pulmonary veins है। अब again the same thing is here. They are known as pulmonary veins, but this is also an exceptional case. Although they are known as veins, but they are bringing what? Pure blood. Normally हम कहते हैं कि veins में impure blood होता है, but this is exceptional case. These are, एक आ रही है left lung से pure blood लेके और दूसरी आ रही है right hand side के lung से pure blood लेके। तो क्योंकि ये pure blood ला रही है तो इसको कहना तो चाहिए कायदे से आर्टरी, बट हम इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद लंग्स। वेन्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हार्ट के अंदर एंटर कर रही है। एनी ब्लड वेसल विच एंटर इनटू हार्ट इज नोन एज वेन। तो बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑट्रियम, प्योर ब्लड इसके अंदर है, बट स्टिल वी आर
calling them pulmonary veins because they are entering into heart. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सेप्शनल जो वेन है वो एंटर करती है, प्योर ब्लड लेके आती है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है हार्ट का, इट कैरीज प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक पार्ट ये रहता है, दैट इज एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। एओर्टा इज द बिगेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट आर्टरी, और जितना भी ब्लड ये सर्कुलेट होके प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी एओर्टिक वॉल्व में से होता हुआ एओर्टा में जाता है, और एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। इट डिवाइड्स एंड डिवाइड्स, ब्रांचेस इसकी इतनी हो जाती हैं। दीज आर द 3 ब्रांचेस, दे आर गोइंग इन द अपर पार्ट, ब्रेन की तरफ अपर पार्ट में जा रही है, और इसके बाद नीचे जाके ये भी हैज सो मेनी ब्रांचेस, और वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्योर ब्लड की सप्लाई करता है। तो एओर्टा, दिस इज द बिगेस्ट ब्रॉडेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। हार्ट से इट कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट कैरिंग प्योर ब्लड एंड सप्लाइज the whole blood into different parts of the body. पूरे whole body में it supplies the pure blood. So this is the structure of your heart. दोबारा से मैं इसके सिर्फ parts बता देती हूँ कि left side that is left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. This is known as septum. The partition between the 2 ventricle is known as septum. Very thick, it separates the pure and impure blood, and we have this is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. We have pericardium, outermost coating. We have myocardium, myocardium made up of muscles. This is the thick wall. It also protects the heart. We have V1, V2, V1, V2. These are the valves. They are semilunar in shape, and on the left hand side V1 valve is also known as bicuspid valve. This is tricuspid valve. We have V3 and V4. V3 valve is known as aortic valve. This is present at the beginning of the aorta. V4 is present at the beginning of the this right hand side पे, जो आपका ये है आपका सॉरी ये पल्मोनरी आर्टरीज के शुरू में होता है, इसलिए दिस इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे लिखा होगा पल्मोनरी वॉल्व, दिस V4, and some arteries and some veins, they are also related with this heart. 2 veins, vena cava, both are known as vena cava. The vena cava, which is a vein which brings the impure blood, deoxygenated blood from the lower side of the body, इसलिए इसको बोलते हैं inferior vena cava. And we have superior vena cava, which brings the deoxygenated blood from the upper part of the body, from the brain. So that is superior vena cava. We have pulmonary artery. It takes the impure blood to the lungs, left hand side, and on the right hand side के lungs पे लेके जाता है, वहाँ the blood gets purified, और same blood purified होके enters from the left hand side of the atrium, and this is known as pulmonary vein. Exceptional case है, vein है, but still it carries pure blood. तो again last part is aorta. This is the biggest artery, large broadest artery, and it supplies the pure blood throughout the body, upper side, lower side, to each and every part of the body ये blood supply करता है. So students, this is the whole structure of human heart, right? And in my next video I am going to explain the functioning. अगर आपको structure अच्छे से समझ में आ जाता है तो functioning में there will not be any problem. So thank you so much. Take care. And I hope you are all well.